Dear children, today we will see the usage of key. Usage of key. Key will be used to denote the feminine gender. What is it? Feminine gender, both singular and plural. Okay, see now what is the first sentence? Village women. What will you say? गाँव की औरतें, गाँव की औरतें, गाँव की औरतें, गाँव की औरतें मीन्स विलेज वुमेन, गाँव की औरतें, औरतें फेमिनिन जेंडर, सो वी आर यूजिंग की. ओके, गाँव की औरतें. द मीनिंग फॉर औरतें? विमेन. औरतें फेमिनिन जेंडर, सो गाँव की औरतें वी हैव रिटन. ओके, गाँव की औरतें पानी भरती हैं. गाँव की औरतें पानी भरती हैं. गाँव की औरतें क्या करती हैं? क्या करती हैं गाँव की औरतें? गाँव की औरतें पानी भरती हैं. दे फिल, विलेज विमेन फिल वाटर. गाँव की औरतें क्या करती हैं? गाँव की औरतें पानी भरती हैं. भरना टू फिल, पानी भरना टू फिल वाटर. औरतें फेमिनिन जेंडर, सो वी आर राइटिंग गाँव की औरतें. नोट दैट पॉइंट, गाँव की औरतें. गाँव की औरतें क्या करती हैं? गाँव की औरतें पानी भरती हैं. गाँव की औरतें क्या करती हैं? गाँव की औरतें पानी भरती हैं. समझे बच्चे? नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. भारत की नदियाँ सुंदर हैं. भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, की नदियाँ, बिकॉज द की we are using the for Nadia in feminine gender plural. For both singular feminine gender and plural feminine gender, we are using ki. Okay, so Bharat की नदियाँ. What's the meaning? Indian rivers. कैसी हैं? भारत की नदियाँ कैसी हैं? How are Indian rivers? भारत की नदियाँ सुंदर हैं. Indian rivers are ब्यूटीफुल. ओके, यहाँ की नदियाँ, भारत की नदियाँ, की नदियाँ, बिकॉज नदियाँ इन फेमिनिन जेंडर. ओके, बट पानी, पानी इज अ मैस्कुलिन जेंडर वर्ड. नदियाँ फेमिनिन जेंडर वर्ड. समझे बच्चे? इनको याद रखो. वी विल सी some more examples also. Listen carefully. What is there in the next sentence? भाई की कुर्सी नई है. भाई की कुर्सी नई है. कुर्सी माने चेयर. कुर्सी का अर्थ क्या? चेयर. भाई की कुर्सी. भाई की कुर्सी मीन्स ब्रदर्स चेयर. Brother's chair is a new one. Naya, new. Nayi also new only. Okay, so भाई की कुर्सी. भाई की कुर्सी कैसी है? भाई की कुर्सी नई है. नई, न्यू. So we are using की to denote feminine gender. Feminine gender, singular or plural for both. We are using की. समझे बच्चे? लिसन carefully. then क्या है? गुलाब की माला. गुलाब की माला. माला is a feminine gender word. माला, garland. Mala means garland. It is a feminine gender word. Mala in feminine gender. So we are using ki. Gulab ki mala. Gulab ki mala. Rose garland. Okay.
Gulab ki mala. How is it? Gulab की माला सुंदर है. गुलाब की माला कैसी है? हाउ इज इट? इट इज ब्यूटिफुल. गुलाब की माला सुंदर है. रोज garland is beautiful. देखो, I have told you we have gender for each and everything in Hindi, whether it's a living thing or non-living thing. Mala is a non-living thing, isn't it? Garland, but it is in feminine gender. So by using ki only we can know mala is a feminine gender word. Sanjay, now see Ravi ki kitab. Ravi ki kitab. Ravi's book. ரவியினுடைய புத்தகம். Ravi's book. Ravi ki kitab. Kitab is a feminine gender word. Kitab is in feminine gender. So what we are using before that? Ki. We are using ki before kitab. Sanjay, Ravi ki kitab. ரவியினுடைய புத்தகம். So we are using ki to denote feminine gender. We use ki to denote feminine gender word. Okay. रवि की किताब कैसी है? रवि की किताब मोटी है. रवि की किताब मोटी है. Ravi's book is thick. Okay. So किताब is a feminine gender word. समझे? इस पिक्चर में क्या है? बकरे. बकरे की पूंछ. बकरे की पूंछ. पूंछ means tail. Okay. Before tail, what is given there? Ka, ke or ki? Ki is given. Why? Because पूंछ is a feminine gender word. So बकरे की पूंछ. बकरे की पूंछ. Goat's tail. Okay. बकरे की पूंछ कैसी है? बकरे की पूंछ नाटी है. बकरे की पूंछ कैसी है? नाटी है. Goat's tail is short. बकरे की पूंछ कैसी है? नाटी है. बकरे की पूंछ नाटी है. नाटी means short. नाटा, नाटी. ओके. बकरे की पूंछ कैसी होती है? वो नाटी है. सो की पूंछ. पूंछ is a feminine gender word. So we are using की. बकरे की पूंछ नाटी है. Goat's tail is short. छोटा means small. Okay. छोटा, small. Nata, short. Here पूंछ is a feminine gender word. So instead of nata we are writing nati. संजय बच्चे, चित्र को देखो. दिलीप की गाड़ी यहाँ है. दिलीप की गाड़ी. दिलीप की गाड़ी means दिलीप्स vehicle. दिलीप की गाड़ी कहाँ है? यहाँ है. We can say गाड़ी for all kind of vehicles. Okay. यहाँ car is denoted as गाड़ी. Okay बच्चे. So गाड़ी is a car. यहाँ देखो, दिलीप की गाड़ी. गाड़ी is a feminine gender word. गाड़ी is in feminine gender. रेलगाड़ी feminine gender. Okay. गाड़ी feminine gender. So we are saying दिलीप की गाड़ी. दिलीप की गाड़ी. This की denotes गाड़ी is in feminine gender. समझे बच्चे? रेलगाड़ी, चेन्नई की रेलगाड़ी कब आती है? ओके. चेन्नई की रेलगाड़ी. Likewise, दिलीप की गाड़ी. Okay. So गाड़ी is a feminine gender word
श्री राम की पत्नी सीता है। श्री राम की पत्नी कौन है? श्री राम वाइफ। हु इज श्री राम वाइफ? श्री राम की पत्नी सीता। श्री राम की पत्नी, श्री राम की पत्नी, श्री राम वाइफ। ओके, राम की पत्नी। सो दिस की denotes पत्नी is a feminine gender word. Okay, पत्नी is a feminine gender word. So we are writing की श्री राम की पत्नी। श्री राम की पत्नी कौन है? श्री राम की पत्नी सीता। श्री राम की पत्नी सीता। Dear children, go through this video and learn more. Hari Om Namaste.